कैसे करना था, जैसे कि ये जो है इस सिग्नल का, अब अगर हमें x ऑफ माइनस एन लेना हो तो कैसे लेंगे, x ऑफ माइनस एन, x ऑफ माइनस एन, x ऑफ माइनस एन क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अब 3 अपनी जगह पे रहेगा, 3 माइनस 1 एंड 4 इस साइड पे आ जाएंगे ये, और 3 बीच में जाएगा और -2, ठीक है, ये सिग्नल बन जाएगा। ओके, सो दैट वी नीड टू राइट दिस here, need to write this here so that it will be 3 पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्नल। ओके, ये सिग्नल हो जाएगा। और फिर हमें इवन पार्ट में क्या करना है, x ऑफ n, x ऑफ माइनस n और इसका हाफ, यानी कि x ऑफ e क्या हो जाएगा, x ऑफ e will be x of e n will be equal to half of what, half of, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 लिखा है इसके आगे, क्योंकि यहाँ पे ये 0 पे 3 है, -1 पे -2 है, फिर 0 है, फिर 0 है, 3 + 0 is 3, ठीक है, -1 + 0 is -1, फिर 4 - 2 is 2, then 6, then -2 of 2 is 2, फिर -1, 6, 2, ओके, और यहाँ पे -1, फिर 3, ये हो जाएगा सिग्नल, या विच विल बी 3/2 -1/2 1 एंड 3, 0 यहाँ पे रहेगा, दिस विल बी दिस। ऑफ कोर्स तो मैं इस हाफ को सबसे हाफ करना है, तो ये 3/2 हो जाएगा, -1/2, 2 का 1 हो जाएगा, 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 3, 1 माइनस हाफ एंड दिस। ऐसे ही और निकालोगे तो इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट। ओके, पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल क्या होता है, पावर वर्सेस एनर्जी सिग्नल। पावर वर्सेस एनर्जी, पावर सिग्नल कौन से होते हैं, power energy of a signal is this, energy of the signal is within the limit n tending to infinity, if you take mod of sum of n from -infinity to infinity mod of xn का whole square. This is called energy of the signal, and power of the signal is limit n changing to infinity summation n tending to -infinity to infinity इसमें डिवाइड कर देते हैं 1/2n + 1 से, एवरेज लेते हैं, ठीक है, और इसको दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ सिग्नल। सो whenever energy is finite means it is in between -infinity and infinity, मतलब -infinity और infinity के अलावा finite वैल्यू है, and power is equal to 0, then the signal is said to be an energy signal,
ठीक है. And when power is finite and energy is infinite, then the signal is called a power signal. Okay, this is the difference between energy signal and the power signal. For example, suppose we have this signal. Suppose we have suppose xn is equal to half raised to power n un. Okay, suppose this is the signal, and we have been asked to find out whether this signal is a power signal or energy signal. So first we will calculate energy. So what will be the energy? Limit, within the limit n tending to infinity, summation n to be equal to minus n to plus n mod of xn का होल स्क्वायर. वी नो दैट कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती है. सो वी कैन राइट दिस लिमिट एज लिमिट टेंडिंग टू infinity मॉड लेंगे, यानी कि हाफ रेज टू पावर n नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम करना है, where n is changing from 0 to सपोज ये 0 से लेके सपोज ये कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर n तक, where n is infinity and this n will be n. Okay, so what will be its sum? If n tends to infinity, if this tends to infinity, we know that it is a finite GP. It is a GP with their common ratio less than 1. So इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा. जो 2 आएगा तो इसको 4 कर देंगे. ठीक है, 1/4, so it will be 4/3. Since it is a finite number, so energy is finite. Okay, what will be the power? Power will be limit n tending to infinity 1/2n plus 1, इसकी एवरेज की वैल्यू, और फिर ये वाला सम यहीं पर यही आएगा. ठीक है, दिस सम, एंड इसकी सम की वैल्यू तो हमें पता ही है, इसकी सम की वैल्यू है 4/3. तो 4/3 divided by 2n plus 1, where n tends to infinity, that means this sum will be 0. So power is 0, energy is 4/3. Therefore, this signal will be an energy signal. Okay. This signal will be an energy signal. On the contrary, periodic signal, for example, suppose we have this signal, xn equal to exponential suppose j pi/3 and pi/3n plus pi/2. Okay, suppose ये सिग्नल है एक्सपोनेंशियल सिग्नल, दिस इज j, आयोटा हो गया pi/3n और pi/2. ओके, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी निकालेंगे. एनर्जी विल बी लिमिट n tending to infinity mod of xn
रेज टू पावर स्क्वायर। अब हमें पता है किसी भी एक्सपोनेंशियल अगर इस तरीके से कोई भी चीज़ लिखी है तो उसका मॉड हमेशा 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। सो वी नो डैट इसका जो लिमिट होगा, ऑफ कोर्स यहाँ सम भी आएगा, सम n टेंडिंग टू माइनस n टू प्लस n, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी summation n changing from minus n to plus n mod of, अब mod of xn कितना है, mod of xn is 1, so 1। अब 1 को माइनस n से n टाइम्स जब ऐड करेंगे so we will get it to be n tending to infinity, n tending to infinity, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2n plus 1, ये हम इसे माइनस n to n ऐड कर रहे हैं। अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, सो एनर्जी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ठीक है। ऐसे ही पावर क्या होगी, पावर होगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड दिस समेशन 1/2 पाई 1/2n plus 1 and this thing, ओके, दिस थिंग। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, इसकी वैल्यू ऐसे आएगी 2n plus 1, इसकी वैल्यू आएगी 2n plus 1, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n plus 1 और नीचे भी 2n plus 1 है, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आंसर विल बी 1। सो इट मीन्स इन दिस केस पावर इज फाइनाइट, एनर्जी इज इनफाइनाइट, hence the signal will be a power signal. Signal will be an power signal. अगर सपोज सिग्नल ये है xn is equal to n times u of n, ओके, दिस सिग्नल। अब इस सिग्नल में क्या है, अगर इसकी एनर्जी निकालेंगे हम, एनर्जी, इसकी एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगी, अब इसका मॉड लेंगे, यानी कि समेशन n टेंडिंग टू n चेंजिंग टू इंफिनिटी n ऑफ un का मॉड, ठीक है। तो इसका मॉड लेंगे तो हमें पता है कि ये जो है n, क्योंकि n की अब इसकी नेगेटिव वैल्यूज पे भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और un मतलब इट विल बी चेंजिंग फ्रॉम 0, तो इसका मतलब ये हुआ समेशन ऑफ n फ्रॉम n चेंजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर होता है ना n स्क्वायर, सो इसकी वैल्यू, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको ऐड करेंगे नेचुरल नंबर्स को, सो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, ओके। सो एनर्जी विल बी इन्फिनिटी, व्हाट विल बी द पावर, power will be n changing from infinity to infinity n by un का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n plus 1। ऑफ कोर्स इसको आप n कर दीजिए, ये n आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल n, ठीक है, क्योंकि सम हमें n में करना है, ओके। जब ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2n plus 1 1/2n plus 1 summation n changing from n minus n to n and n का होल स्क्वायर, n का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, और हमें पता है अगर हम इसे ऐड करेंगे n टाइम्स तो ये भी इन्फिनिटी आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर का टर्म आ रहा है, यहाँ n का आ रहा है, तो दिस थिंग विल बी, डिनोमिनेटर विल बी डोमिनेटिंग, एंड सिंस डिनोमिनेटर इज डोमिनेटिंग देयरफॉर numerator will be dominating, numerator is dominating than the denominator, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है,